Hello and welcome back, dear students. Welcome to Kai Sopur. In today's video, we'll be just discussing some questions of KLP 15. Especially, we'll be just discussing the physics paper over here. You know, this test was meant for the NEET students. The syllabus of this test was from magnetism. The questions are from magnetism, AC currents, electromagnetic induction, and electromagnetic waves. So, now let's discuss some questions over here. So, in order to make the video short, so we do have the very first question that in a moving coil galvanometer, the deflecting torque acting on the coil is related to the current I flowing through it. Suppose we know the galvanometer and the ammeter, do have the basic difference that galvanometer also measures the current, even though the ammeter also measures the current, but the difference is that galvanometer is very sensitive in comparison to ammeter, so it can measure the very small currents. So we know the galvanometric equation that tau is equal to directly proportional to I. So what we use actually, tau equals to Ki. K is nothing but the galvanometric constant. Here in what we can see that the relation of tau with the I is direct relation. So we can say tau is directly proportional to I. So if we'll check the option B seems to be correct. It is actually the correct option. Now moving to the next question. The question is, a positively charged particle moving due east enters a uniform magnetic field directed vertically upward. The particle will, okay. Now let's understand this question. The question is saying we do have a positive charge which is moving due east. Firstly, let's make the coordinate system in order to understand the thing. So the charge is moving due east, right? So this is the east direction, and this is the north direction, this is the west, and this is south. So the charge is moving due east, but it is saying that it enters in the magnetic field. The magnetic field is directed upward, directly vertically upward. But the thing that is important to be mentioned over here is the magnetic field is uniform. So the magnetic field being uniform, what sense it makes for us is that whenever there is uniform magnetic field exerts a force, magnetic force, that is actually mv square divided by r. जब भी चार्ज एंटर करता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, the magnetic field applies a magnetic force over here, but this magnetic field force has a special property. It does not alter the speed. ये speed पे कोई फर्क, like it does not impact the speed of the charged particle. तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ये इस पे लगाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो बराबर होगा QVB के बराबर, राइट? जो ही ये चार्ज एंटर हो जाएगी, ये चार्ज ऐसे घूमेगी सेंट्रीपिटल फोर्स से. जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये चार्ज सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. When it will move in a circular motion, so the very first thing we know that the charge will move in the circular motion. सर्कुलर मोशन के साथ अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, दैट मींस द स्पीड इज गोइंग टू रिमेन यूनिफॉर्म, इट्स गोइंग टू रिमेन द कांस्टेंट. So what we will see, move in a circular path with increased speed, as I said that it will not alter the speed. Get deflected vertically upward, no. Move in the circular path with a decreased speed, no. So it will move in a circular path with a uniform speed, because there is centripetal force getting exerted on it. Centripetal force will make the charge to move in a circular path. Now let's move to the third question. The question is saying a coil carrying electric current is placed in a uniform magnetic field. देखिए हमने coil को लिया है. Let's say this is the coil carrying current. It's placed in a uniform magnetic field. देखिए uniform magnetic field में question का answer present है. When the magnetic field is uniform, what does this mean? The flux is constant. The flux is constant. तो जब flux constant होता है, dear students, we know EMF equals to d phi divided by dt. अगर ये flux phi constant है, what is the induced EMF? EMF ही zero होगा, क्योंकि differentiation of constant is zero. Differentiation of constant is zero, तो EMF zero होगा, तो induced EMF तो zero होगा. तो EMF तो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा. इफ वी विल चेक द ऑप्शंस, तो EMF तो प्रोड्यूस नहीं होगा. टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड
हाँ टॉर्क तो प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इज इंड्यूस, नो दिस नॉट करेक्ट। तो टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा जब भी आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें कितना प्रोड्यूस होता है टॉर्क, हमें पता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, ये तो हमें ये चीजें पता है। तो मोमेंटम तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं कि कॉइल उठ के यहाँ चली जाए, राइट। कॉइल अपनी जगह पे ऐसे रोटेट करेगी, इट विल रोटेट, दैट मीन्स टॉर्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ऐसे मूव नहीं करेगी, अदरवाइज वहां पे मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, बट वी विल सी दैट टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस होता है, मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा। नाउ मूविंग टू द अदर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q is moving with a uniform speed v in a circle of radius r. Okay fine, पहले क्वेश्चन को समझते हैं डायग्रामेटिकली। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज माइनस q है। पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज माइनस q है, इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। ओके, ये मूव कर रहा है लेट्स से विद दिस यूनिफॉर्म स्पीड v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, let's say this is the radius r with another charge at the center. Okay, another charge, positive charge है at center, the value of r। अच्छा रेडियस पूछा है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, दैट्स नॉट एक्चुअली अ फोर्स, दैट इज द कॉम्बिनेशन, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से बन जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये चार्ज घूम रहा है, द चार्ज इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब जब भी यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब व्हाट वी आर गेटिंग एन आइडिया फ्रॉम ओवर हियर दैट कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स एज सच रियल फोर्स, या ऐसा हम समझ लें कि ये खुद एक फोर्स नहीं, इट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्स। तो यहाँ पे इन दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होगा, दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, व्हाटसोएवर इट इज। तो अब हमें पता है जो इलेक्ट्रो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट्स एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये कितना होगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught magnitude q divided by r square। यहाँ पे इवन दो वन चार्ज माइनस क्यू है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो r से r कैंसिल, सो व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, r को इधर भेज दीजिए, r वी आर गोइंग टू गेट 1 डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught m q स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, या हम होल में ऐसा लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाय v होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द ऑप्शन 1 डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught m q by v होल स्क्वायर। सो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग इफ number of turns, area of cross section and current through a coil is Ni, n is the number of turns, a is the area, I is the current, then the magnetic moment, magnetic moment तो ये तो memory based question है, that is directly Nia, n is the number of turns, I is the current, a is the area of cross section, तो directly इसका option जो होगा वो B option होगा। Now this is the question, a piece of wire bent in the form of circular loop। अच्छा हमारे पास एक वायर है उसको हमने बेंड किया in the form of circular loop, carries a current I, loop A, let's say loop A carries a current I, the wire is then bent in the circular loop again of 2 turns। अच्छा यहाँ पे 2 turns कर दिए गए इसके, and carries the same current, current is not changed at all, the ratio of the magnetic field। okay, देखिए हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से द लूप फॉर द लूप ए, जो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता है दैट इज एक्चुअली म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, अब हमने क्या किया, म्यू नॉट आई करंट। अब हमसे क्या कहा गया, इस टाइम पे टर्न्स एक्चुअल में वी राइट लाइक दिस वे, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है। हमने क्या किया, इस लूप को 2 टर्न्स में कंबाइन, लाइक वी जस्ट बेंड किया इसको दूसरे सर्कुलर लूप में ऑफ 2 टर्न्स, हमने इसके टर्न्स को ट्वाइस कर दिया, तो जो इसका रेडियस होगा ना वो ओरिजिनल रेडियस का आधा हो जाएगा। तो फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 2 म्यू नॉट, करंट तो सेम है डिवाइडेड बाय 2, इसका रेडियस कितना है r डिवाइडेड बाय 2।
Once you will solve it, so you are going to get magnetic field of B 2, and this comes up to be 4 mu naught I divided by R. Now this n यहाँ पे 1 रख दो. What is this 4? This is actually nothing, magnetic field of A. So that will be its option. What is the question asking? The ratio of magnetic field of center of अच्छा BA to the B of B वो पूछा गया. That is actually equal to 1/4. तो ये इसका correct option होगा C. ये 1/4 है इधर, ये 1/16 है. Now the other question is, a current of 10 ampere is flowing from east to west. देखिए मैग्नेटिज्म में ना डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन कह रहा है एक करंट है जो फ्लो कर रहा है ईस्ट से वेस्ट. सो लेट्स से दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. करंट कितना है? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 10 एम्पियर. ठीक है, 10 एम्पियर करंट है. फाइन. तो करंट 10 एम्पियर है. अब हमसे पूछा है kept on a horizontal table. अच्छा हमने एक horizontal table पे रखा. The magnetic field developed at 10 centimeter vertically above the wire. Let's say this is the wire. इस वायर से 10 सेंटीमीटर की हाइट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा हमें पता है. लेट्स से द करंट इज गोइंग दिस वे, द करंट इज गोइंग दिस वे. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, वो तो दिख रहा है हमें. मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, इट विल फॉर्म द सर्कुलर लूप्स. और जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. ये तो हमें पता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द सर्कुलर या करंट कैरिंग कॉइल. आर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरे आर इस पे लगेगा, राइट. तो इस पे जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वी कैन कैलकुलेट बी एज इक्वल टू म्यू नॉट को लिखते हैं 4 पाई टाइम्स 10 to the power -7 मल्टीप्लाइडेड बाय आई कितना गिवन है करंट 10 एम्पियर. 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइडेड बाय आर कितना गिवन है रेडियस 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्वाइट ऑब्वियस, ये तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड जा रहा है. तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. So it comes up to be 2 multiplied by 10 to the power -7 multiplied by 10 divided by 0.1 को we can write 1 by 0.1 into 10. So this comes up to be 2 into 10 to the power -5. So this comes up to be 2 into 10 to the power -5 downward southward. तो इसका जो ऑप्शन है एक्टिंग ड्यू नॉर्थ तो नहीं है, अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स होना चाहिए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. 2 into 10 to the power -5 downward. Now let's move to the next question. The question is saying that a proton which is traveling at a 23 degree with the direction of magnetic field, जिसकी स्ट्रेंथ है 2.6 मिली टेस्ला, दिस इज mt मिली टेस्ला, राइट, experiences a magnetic force of 6.5 into 10 to the power -17. What's the speed of proton? Okay, fine. देखिए इस क्वेश्चन को we know the Lorentz force F equals to Q VB sin theta, right. हमसे क्या पूछा गया? स्पीड. तो we can write V as equals to F divided by Q B sin theta. So V as force कितना गिवन है 6.5 times 10 to the power -17 divided by चार्ज किसका है? प्रोटॉन का. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड वाई सेम है 19 मल्टीप्लाइडेड बाय बी कितना है 2.6 times 10 to the power -3. दिस इज मिली टेस्ला, राइट. और साइन 23 जो होता है दैट इज 0.86. तो ऑप्शंस दूर है, हम इसको 1 मान सकते हैं, राइट. रफली इक्वल टू 1, एक्चुअली इट इज 0.86 माइनस टाइम्स. तो वेलोसिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज
जब हमें वेलोसिटी निकालनी है तो नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो दैट ओनली सिग्निफाइज द डायरेक्शन. So once we will solve it, 6.5 times 10 to the power minus 17 multiplied it by इसको like 10 raised power minus 19 और 10 raised power minus 3, तो ये 10 raised power 22 ऊपर चला जाएगा, right? Divided by 1.6 times 2.6. So this comes up to be 1.6, 2.6 round of 10 raised power 5, तो ये आ रहा है 6.5 multiplied by 10 to the power 5 divided by 1.6 times 2.6. So once you will solve it, you will roughly get the answer as 4 into 10 to the power 5 meter per second. Now moving to this question, the question is saying we do have the magnetic moment M which is lying on the magnetic field in a magnetic field of induction B. जिसकी magnetic field induction B. W is the work done in turning from 0 to 60 degree. Okay, we are being given that W is the work done in turning it from 0 to 60 degree, and W2 is the work done in turning from 30 to 90 degree. Then okay, we do have to calculate the ratio of work done. Fine. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, we know the work done equals to minus mb cos theta 1 minus cos theta 2. बस इतना पता होना चाहिए वर्क डन का फॉर्मूला, तो आंसर आ जाएगा. तो वर्क डन 1 विल बी इक्वल टू माइनस एम बी, पहले cos थीटा 1 कितना 0 to 60, so we will write cos 0 minus cos 60. So we will write W1 equals to minus mb cos 0 कितना होता है 1, cos 60 होता है 1 by 2. Fine. So we will get W1 equals to minus mb, ये आपको पता है 2 आ जाएगा, 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2 हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमें W2 निकालना हो, राइट, W2 किसके बराबर आ जाएगा, कहाँ से कहाँ एंगल है 30 to 90, तो सेम मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ माइनस एम बी कॉस 30 माइनस कॉस 90, तो यह आ जाएगा W2 इक्वल्स टू माइनस एम बी. फाइन. कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 90 होता है 0, सो वी विल गेट W2 as माइनस एम बी √3 डिवाइडेड बाई 2. अब हमसे क्या पूछा है W1 W2, W1 डिवाइडेड बाई W2 कितना आ जाएगा MB डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कर दो तो ये ऐसा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई MB √3, राइट. 2 से 2 कैंसिल, MB से MB कैंसिल, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट W1, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ W2 इक्वल्स टू √3 W1. If you will check, W2 equals to √3 W1, and this seems to be option number 4. हाँ, option number 4 है, √3 इसमें आ रहा है, so that is it's actually correct option. Now we do have the other question. The question is a magnet of length 0.1. Let's say this is the magnet, जिसकी length है 0.1 and जिसकी pole strength, अच्छा ये pole strength given है 10 to the power minus 4. What is this pole strength actually? This is actually m, small m, 10 to the power minus 4, right? Ampere meter. Is kept in a magnetic field of 30 Weber per meter square. Okay, जो B given है magnetic field वो कितना given है 30 Weber per meter square. Question क्या कह रहा है? Question कह रहा है at an angle, okay, theta is also given 30 degree. The couple acting on it is, okay, fine. देखिए जब भी आप किसी मैग्नेट को रखते हैं, we know वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, that's actually equal to M क्रॉस B. M किसके बराबर है मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P, वो किसके बराबर होता है Q मल्टीप्लाइडेड बाय डाइपोल लेंथ. ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, चार्ज के बदले हम ले लेते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइडेड बाय डाइपोल लेंथ मल्टीप्लाइडेड बाय B साइन एंगल
30, राइट. सो m कितना लिखेंगे हम, 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी गिवन है, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. Magnetic field strength is given 30 multiplied it by sine 30. So we can easily solve, then accordingly put the values, and whatsoever will be the option, we will get the answer. Now the question is, the radius of coil of tangent galvanometer which has the radius which has 10 turns is 0.1 meter. The current required to produce the deflection of 60 degree BH given है. देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू tan थीटा. फाइन. तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है n इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r. BH कितना गिवन है, 4 इंटू 10⁵ tan 60 राइट. सो n तो हमें गिवन है 10, म्यू नॉट तो पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 राइट, सॉरी 2r है, मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना गिवन है, अच्छा करंट हमें निकालना है राइट, I डिवाइडेड बाय फाइन ओके, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय r. ठीक है. सो रेडियस गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 0.1, करंट हमें निकालना है 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 10⁵ मल्टीप्लाइडेड बाय tan 60. फाइन. सिंपली ये क्वेश्चंस थोड़े सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं. आपको दिख रहा होगा यहाँ से 4 से 4 कैंसल, 10 से 10 a कैंसल, ये कितना बन जाएगा. सो वंस वी विल सॉल्व इट वी विल गेट द ऑप्शन रफली एज 1.1. Now we do have this question using the formula lambda mt equals to 0.29 centimeter Kelvin. The characteristic temperature range obtained from. देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है लैम्डा एम टी कितना है, दैट इज 0.29 सेंटीमीटर. फाइन. अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज फॉर लैम्डा एम दिस. देखिए लैम्डा एम, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ टेम्परेचर इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा एम कितना है, मैं ऐसा लिख लूँ फॉर लैम्डा एम इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻7. 0.29 डिवाइडेड बाय 5 multiplied by 10⁻⁻7. So what we are going to get roughly as 0.29 divided by 5 multiplied by 10⁻⁷. So 0.29, so roughly ये ऑप्शन इसका आंसर बैठ जाएगा. सपोज इफ यू विल जस्ट सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर. नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, द वैल्यू इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. देखिए ये तो मैक्सवेल ने प्रूव भी किया था. मैक्सवेल प्रूव्ड दिस फॉर वैक्यूम. जब भी हम वैक्यूम के लिए निकालते हैं ना, हमें पता है कि स्पीड ऑफ जो लाइट है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. राइट. ये आती कहाँ से, मैक्सवेल प्रूव्ड दैट इन वैक्यूम जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. म्यू नॉट आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 टाइम्स 10⁻⁻12. So once you put, you take the root, you will get the answer this. ठीक है. तो यही मैक्सवेल ने प्रूव किया था. दिस इज फॉर द वैक्यूम, और हमसे वैक्यूम का ही पूछा था. मीडियम का होता म्यू, हम रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लेते हैं. सो दिस विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन. Now moving to this question, the magnetic flux linked with the coil of n turns of the area of cross section A held with its plane parallel to the field. Okay. देखिए हमें क्या पता है, वी नो फाई इक्वल्स टू NAB cos थीटा. ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. अब व्हाट इज दिस, n number of turns, A is the area of cross section, B is the magnetic field, what is the theta? Now actually theta is the angle between normal of coil and magnetic field.
देखिए कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में समझना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है सपोज हमने एक कॉइल को लिया, इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, ये क्रॉस सेक्शन इसके जस्ट पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें जो इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है वो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ होगा, राइट। देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्मल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तो क्वाइट ऑब्वियसली 90 डिग्री है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, थीटा को पुट करते हैं बिटवीन एरिया एंड बी, नो नो नो, इट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ दिस कॉइल, कॉइल का नॉर्मल ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा, तो एंगल 90 होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी हैं, वी आर लीस्ट कंसर्न विद इट, क्योंकि थीटा अगर 90 है और cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ जाएगा वो जो है डियर स्टूडेंट्स वो 0 आ जाएगा, तो दैट विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, a 50 mH coil carries a current of 2 ampere, the energy stored in the coil is, देखिए एनर्जी का हमें पता होता है फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, एल आई स्क्वायर, इंडक्टेंस दी हुई है 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना गिवन है 50 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर है, मल्टीप्लाइडेड बाई करंट कितना है 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, सो यू विल गेट इट एज 50 times 10 to the power -3 multiplied by 2, so that comes up to be 100 multiplied by 10 to the power -3, तो इसको डिवाइड बाय 1000 तो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं 100 डिवाइडेड बाय 1000, so that comes up to be 0.1, आंसर एनर्जी है तो जूल ही निकाल, सॉरी जूल है, तो that comes up to be 0.1 जूल। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली है, मेमोरी बेस्ड है, हमें पता है जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस होता है दैट इज एक्चुअली वेबर पर एम्पियर, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फाइन, सो दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम KLP 15, आई होप कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और मोर ओवर जहाँ जहाँ पे calculations I have left it, that is only for you to solve once you are solved, because you do have to appear in the NEET exam. I hope आपको समझ आ गया होगा। Thank you.